یہ جو کو لیبس بن رہے ہیں, کو ورکنگ اسپیسز بن رہی ہیں, کال سینٹرز بن رہے ہیں, دس از دا پوٹینشیل فار دا فیوچر آف یور یوتھ, جو کہ کامسیٹس میں اور ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس میں نوکریاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ گھر میں بیٹھ کے ایک ایک ڈیسک کے اوپر بیٹھ کے ہزاروں کی تعداد میں بچے اور بچیاں جو ہیں دے آر ڈوئنگ انٹرنیٹنگ اینڈ دے آر ناٹ واچنگ پورن, دے آر ناٹ واچنگ فلمز, دے آر کریٹنگ کانٹینٹ, دے آر ایکسپورٹنگ دس کانٹینٹ. اور ہمارے حکمران پاگل ہو گئے ہیں. پہلے انٹرنیٹ کو سلو کرتے ہیں, اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنا نقصان ہو گیا. اس کے بعد یہ 5G کو آنے نہیں دیتے, 4G کو بلاول سے 2G پہ لے گئے. What are they doing? These are ignorant people. یہ اپنی ایک شارٹ ٹرم سروائیول کے لیے ساری اکانومی کو اور ساری یوتھ ڈیولپمنٹ کو داؤ پہ لگا دیا ہے. I am very very upset and angry at this. اور میں داد دیتا ہوں, حالانکہ میں اگری نہیں کرتا فواد چودھری کے ساتھ, مگر کم از کم اس کی ہمت تو ہوئی ہے کہ کوئی بولا ہے اس کے خلاف. ساری نون لیگ چپ ہے, سوائے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب, اور کسی نے احتجاج نہیں کیا. اس کے اوپر باہر نکلنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو. یہ نہیں کہ جی احتجاج کرنے جا رہی ہے, جمہوریت نہیں ہے. اور جی جمہوریت بعد کی گل ہے, پہلے کھان پین دی تے گل کرو. یہ آپ کی روزی کا کام ہے, یہ آپ کی نوکریوں کا کام ہے. اسٹوڈنٹ شوڈ کم آؤٹ. اگر کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس چیز کے اوپر پروٹیسٹ کریں. یہ کیا ہوا جی پروٹیسٹ, پولیٹیکل پروٹیسٹ, فار واٹ ریزن؟ So I'm sorry, I'm getting upset and angry, but this is a ridiculous situation. یہ کوئی ماڈرن ملک جو ہے یہ ایسے حرکتیں نہیں کرتا. اور پھر یہ اب ایک طرف وہ ویڈیو ریلیز کرتے ہیں 9 مئی کی, دوسری طرف وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے خود ہی بند کر دیتے ہیں سارا کچھ. How absurd is this? How absurd is this? یہ it is as absurd جیسے ایک زمانے میں یہ ہائی کورٹس نے پابندی لگا دی تھی جی کہ نواز شریف کی اسپیچ جو ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتی. اب وہ کانوکٹ ہے, او بھائی خدا کا خوف کریں. اب یہ اسی قسم کا یہ نانسنس ربش قسم کا فیصلہ ہے کہ جی عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا ٹی وی کے اوپر. اور بانی پی ٹی آئی, کیا مذاق بنایا ہے ان لوگوں نے. ریڈیکولس. کوئی میچورٹی ہونی چاہیے. وی آر دا لافنگ اسٹاک آف دا ورلڈ. میں لندن میں بیٹھا ہوں, یہاں گورے مجھے پوچھتے ہیں آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ آپ کی حکومت یہ کر رہی ہے. میں شرمندہ ہوں. I can't even defend this government anymore. I am sorry. If you care about Pakistan, then do your job. اگر آپ وہ یہ لوگ جو غلط فالس انفارمیشن پھیلاتے ہیں ان کو اگر پکڑ نہیں سکتے قانون کے تحت, تو یہ تو نہ کریں نا کہ انٹرنیٹ کو بند کر دیں آپ. This is nonsense. This is ridiculous. Learn to deal with these issues. Not clamp down on everything. تو پھر اگر یہی ہے تو گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں گاڑیاں بند کر دیں, جہاز کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جہاز بند کر دیں. یہ بسنت کے اوپر بھی اسی قسم کے بیوقوفانہ فیصلے ہیں سب کے کہ جی وہ گڈیاں اڑاتے ہیں لوگ اور وہ ڈور گر جاتی ہے اور ڈور لوگوں کے گلے کاٹ دیتی ہے, اس سے گڈی اڑانی بند کر دیں. یار کمال ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ کتنے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کتنے لوگ گاڑیوں سے مرتے ہیں؟ نہیں, وہ تو کچھ نہیں کرنا. آپ کو پتا ہے یہ گاڑیاں جو ہیں یہ کس قسم کی ٹاکسک فیومز, یہ موٹر سائیکلز اور یہ گاڑیاں اور یہ جو بادامی باغ میں لگے ہوئے ہیں آئل کو ریسائیکل کرنے میں, اس کو نہیں روکنا. وہاں بڑے کھانے پینے پیسے لے لے کے وہ گند بلا چل رہا ہے وہاں, ان کو نہیں روکنا. مگر یہ ہے کہ جی اب ہم اسموگ کے بارے میں کیا کریں. ساری لائف ہیز کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. It's become the most dangerous city in the world. Hospital expenses are going up because people are landing up in hospital. But you don't care. ایسے ہے جیسے کہ حکمران آئے ہوئے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے اور کوئی پبلک کے لیے کوئی کام نہیں کرنا. I am sorry. This is shocking the way this government is being run. اچھا سر صاحب, آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ سے سوال کیا جاتا ہے اور آپ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اسپیشلی جو ہمارے فری لانسرز ہیں جب ان کا کام ٹھپ ہوتا ہے, وہ ایکسیس نہیں کر سکتے انٹرنیٹ کو, تو ان کی شکایتیں بھی سامنے آتی ہیں اور پھر وہ ان کو کام ملنا ان ویب سائٹ سے بند ہو چکا ہے, اور بہت یوتھ جو ہے وہ اس سے ڈس اپوائنٹ بھی ہے. اسی طرح کی US ایمبیسی میں جرنلسٹ کے گروپ کی سٹنگ کا اہتمام کیا گیا, اور وہاں US تھنک ٹینک آفیشل انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ پاکستان
पाकिस्तान में मुख्तसर मुद्दत की सियासी ताकत के हुसूल के लिए तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम को दाव पर लगाना ठीक नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट्स उन्होंने कहा कि हमारे पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुआशी मसाइल लोगों को देखने पड़ रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि वज़ारत दाखिला का और हुकूमत का कंसर्न अपनी जगह पर तो ये है कि इससे दहशतगर्दी का फ़रोग हो सकता है इंटरनेट के ज़रिए, और दूसरा कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी इसकी मदद से बाईपास करके की जाती हैं रिस्ट्रिक्शंस को। फिल्टर फिर कैसा लगाया जाए और हुकूमत इसकी मदद से जो सियासी फ़ायदे हासिल करना चाहती है, क्या वो हासिल हो पाएंगे हुकूमत को? देखिए, परफेक्ट सोल्यूशन तो नहीं होती ना। परफेक्ट सोल्यूशन तो वो है कि जिसमें ये इंस्टेबिलिटी ना हो और सारे लोग मिलजुल के काम करें। मगर यहाँ तो लड़ाई झगड़े हैं सारे मुल्क के अंदर। वो लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए ये तरीका नहीं है कि इंटरनेट ही बंद कर दो। आप टैकल करें ना जो रियल प्रॉब्लम है। क्यों लोग नाराज हैं आपसे, क्यों किसको वोट डालना चाहते हैं, क्यों आप उनको रोक रहे हैं। आप जो उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें ना। अब बात यह है कि सारी दुनिया में ये प्रोटेस्ट होते हैं, क्या इंटरनेट बंद कर देते हैं? सारी दुनिया में फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है। अमेरिका में डू यू नो कितनी फॉल्स इंफॉर्मेशन अमेरिका में, स्पेशली द ट्रम्प कैंपेन। मतलब वहीं से तो ये सारी बात चली है। क्या उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया? आई मीन रिडिकुलस। पाकिस्तान इज नथिंग कंपेयर टू जो मिस इंफॉर्मेशन है ऑन द इंटरनेट इन अमेरिका। नथिंग। तो क्या उन्होंने बंद कर दिया? क्या जब वो टेररिस्ट थ्रेट होती है वो सारा इंटरनेट बंद कर देते हैं? नो। वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए टेररिस्ट के पीछे जाते हैं, वो अपना होमवर्क करते हैं जी। वो ये नहीं कि होमवर्क नहीं करना बंद कर दो सारा, ऐसे नहीं होता। तो ये होमवर्क नहीं करते अपना। अब ये टेररिज्म है तो भाई टेररिज्म को आपके पास एंटी टेररिस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि इंटरनेट ही बंद कर दो। इट्स रिडिकुलस। और ये इनकॉम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी और करप्शन, दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल दिस। अब आपने जिक्र किया कि अमेरिकन एम्बेसी ने लोगों को बुला के, और वहां एक अमेरिकन एक्सपर्ट आया हुआ था, उसने क्वेश्चन आंसर लिए ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ द इंटरनेट। देखिए, दो बातें यहाँ। ये अमेरिकन एम्बेसी ने क्यों किया है? ये कोई शौक और लव की वजह से नहीं है कि ये फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, दिस इज प्योर बिजनेस। अच्छा। इंटरनेट इज नाउ द बिगेस्ट, one of the growing biggest source of commercial activity. Foreign embassies जो हैं, they are geared to promote commerce and trade. जी. These are all American companies that provide you with internets and with all the other apps जो इस्तेमाल होती हैं via the internet. This is huge business. This is an area of growth. आप भी इसका हिस्सा बने, ये नहीं कि आप उसको कट कर दें। तो ये दिस इज व्हाट द जेंटलमैन ऑफ द अमेरिकन एम्बेसी, उससे जाहिर है ही कुडंट से कि ट्रेड एंड कॉमर्स इज बीइंग अफेक्टेड। व्हाई डू यू थिंक पेपाल नहीं आ रहा आपके पास? अमेज़न आपके पास और इंपॉर्टेंट अमेज़न नहीं, मनी गेटवेज नहीं है जी। ये कोई मुल्क है कोई जिसके अंदर ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है? हालांकि दे आर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ। अभी देखें, आप चले जाएं और आप देखें यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा में देखें पाकिस्तानी यंगस्टर्स, कोई चाइना जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अच्छा, और वो आपको बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से आपने इंपोर्ट करनी है, किस तरीके से आप कोई एक आइटम ले लें और अमेज़न के ऊपर उसको प्रमोट करें और घर बैठ बैठ के लाखों रुपए कमाएं। दे आर टेलिंग यू वेज एंड मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑफ बिजनेस, ऑफ कॉमर्स वाया द इंटरनेट। एंड ये नौजवान तबका जो है ये देख रहा है, सीख रहा है, कर रहा है। एप्स बन रही हैं यार, कितनी इसकी। हाउ डू यू थिंक दे फील? यू आर कटिंग डाउन द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ thousands and thousands of young people and potentially tens of thousands and thousands. जी. Don't do this. Don't do this. सिर्फ साहब आप don't tell us how uneducated you are. तो सिर्फ साहब यूथ की आप बात करें, अब यंगस्टर्स में ही बिलावल भुट्टो का शुमार भी होता है और वो हमारे इमर्जिंग पॉलिटिशियन हैं, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं। अब वो ये फरमा रहे हैं कि फैसला साज VPN की ABC के बारे में नहीं जानते। उनको नाम नहीं लेके बताना चाहिए कि ये फैसला किसका हो सकता है या किसको ऐसा नहीं करना चाहिए? आयशा, ये VPN शीपीएन देखे ना, क्यों VPN?
वीपीएन की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आपके पास फ्री। अब हाउ मेनी पीपल यूज यूपीएन इन यूएसए और यूके? वेरी फ्यू। ये वीपीएन वहीं रेलेवेंट होता है जहां आपकी हुकूमत जो है वो नॉर्मल सोर्सेज ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वो बंद कर दे, फिर आपने ऐसे करके जाना पड़ता है क्योंकि वो ब्लॉक करते रहते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इन्होंने खुद कहते हैं कि 25,000 से ज्यादा पोर्नोग्राफिक साइट्स को इन्होंने ब्लॉक कर दिया जी। अच्छा यार, आप बात यह है कि आप बैठे हुए वहां, आपके पास पूरी टीम है, आपको सिर्फ इश्यू पोर्नोग्राफी है ना, तो वो तो आसानी से आप ब्लॉक कर सकते हैं। आपके पास 4 बंदे बैठे हो ना, तो आप सारी जितनी नई पोर्नोग्राफिक साइट्स है उसको आप बंद कर सकते हैं जी। मगर फिर लोग वीपीएन जो है, दे हैव टू यूज अ वीपीएन टू गेट टू दोस पोर्न साइट्स। अब आप कहते हैं कि आपने वीपीएन, ओ यार आप व्हाई डोंट यू टीच योर यूथ, आप थोड़ी सी खुला करें ना सोसाइटी को। इवन इन ओपन सोसाइटी लाइक अमेरिका, फ्रांस, और आप बहुत ज्यादा ही बन गए हैं पायस, मोर पायस देन द पायस, और आप लगे हुए ये करने में, उससे आपने सारा कारोबार ही आप तबाह कर रहे हैं। पहले वैसे बंद कर दिया, 2.5 लाख पता नहीं कितनी 25,000 साइट्स बंद कर दी, और काम ही कोई नहीं है आपके पास, है ना, यही बंद करते रहे। उसके बाद आपने सोचा यार ये तो पूरा नहीं हो रहा, चलो वीपीएन ही उड़ा दो, वीपीएन भी बंद, पहले स्लो कर दो ट्रैफिक। यार क्या कर रहे हैं यार, यू व्हाट आर यू डूइंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर यू डूइंग? और आपको अगर कोई कह रहा है तो उनको समझाए, लंबे ना पै जाओ, उन्हें समझाओ यार कारोबार भी होने दो, मुल्क की लॉन्ग टर्म तरक्की का भी सोचो। ठीक ठीक, यानी गॉड सेक, आई मीन ठीक है। अगर यूएस एम्बेसी में आप सोचे वो क्या, मैं बता रहा हूं अब हुआ क्या है। अब लाइन लग गई है, लोग प्राइवेटली वीपीएन बनाए हुए थे लोगों ने, और वो रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी वो पीटीए वाले कहते हैं पता नहीं कितने हजारों की तादाद में लोग नए नए वीपीएन रजिस्टर कर रहे हैं जी। तो किस किस को आप बंद करेंगे? हाँ, किधर किधर जाएंगे आप बंद करने? तो आप इवेंचुअली यू विल शट डाउन द होल इंटरनेट। इसकी लॉजिक तो यही है। तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ठीक यार, गो टू द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। जो लोग आपको तंग कर रहे हैं सियासी तौर पे, उनको पकड़े, उनको कानून के तहत उनको पकड़े, उनको साइलेंस करें। मगर ये जो मेथड है ना, मीडियम जो है, मीडियम को ना तो खुदा के वास्ते अटैक करें, बिकॉज द मीडियम इज अ वेरी प्रोडक्टिव टूल फॉर ग्रोथ जी, फॉर सस्टेनेंस, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड सो ऑन। इट इज द मॉडर्न सेंचुरी, और आप लोग जाने चाह रहे हैं 14वीं सेंचुरी जी। ये दिस इज अ कंट्री दैट इज टोटली कंफ्यूज्ड। दिस रूलिंग क्लास इज कंप्लीटली बैंकरप्ट, और ये लोग जो है दे आर डिटरमिन्ड ओनली टू स्टे इन पावर बाय हुक एंड बाय क्रुक एंड स्टील, दैट्स ऑल दे आर डूइंग। ठीक, यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हर इजाद के अच्छे और बुरे पहलू भी होते हैं, लेकिन आप उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के बजाय उसके अच्छे इस्तेमाल को, सही इस्तेमाल को, मुफीद इस्तेमाल पर भी कदगन लगाए हुए हैं। तो इसमें मुल्क का वसी तर नुकसान है, इसके बारे में सोचना होगा। और वही फैसला साजों वाली बात, अगर यूएस एम्बेसी में ब्रीफिंग का अहतमाम हो सकता है या वहाँ पर इस तरह की कोई मालूमात या डिस्कशन हो सकती है, तो ये सियासतदानों को करना चाहिए। बिलावल भुट्टो को चाहिए कि वो बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि फैसला साज अपना फैसला बदलने पर या कम अज़ कम गौर करने पर मजबूर हो जाएं। सेठी साहब को इतना गुस्सा न करना पड़े, और गुस्सा भी बजा है। ये सारे नौजवान तबके की रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त, जो तिल मिला रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हुए, और उन्हें इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रही। एक और बहुत अहम मामला वहां पर, मैं कहता हूँ ना, आयशा ये नौजवान तबका, मैं कहता हूँ निकले सड़कों और एहतजाज करे कि ये क्या मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने हमारे साथ। ठीक, ज़ाहिर है इंटरनेट मौजूद नहीं है जिसके ऊपर वो अपने ख्यालात का इजहार करते थे, तो बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन वो मुल्क से बाहर निकलने की कोशिशों में मसरूफ़ है, वो जो तबका इस नौइयत की कोशिशें कर रहा है, या वो बिजनेस करना चाहता है, या स्टार्टअप्स हैं उनके, जी क्या करें इस मुल्क, आयशा वो क्या करे, इस मुल्क में जीने नहीं देते। क्या करे वो बेचारे, इस मुल्क में जीने नहीं देते, काम नहीं करने देते किसी को, इज्जत से काम रहने नहीं देते किसी को। ये सारा का सारा जो है ना, ये अब क्या मैं कहूँ,
کہہ دیا آپ نے سیٹھی صاحب، کافی کچھ اگر سنی گئی ہے آواز تو ظاہر ہے اس پر کچھ نہ کچھ کام ضرور ہوگا. اس میں آپ کا ذاتی مفاد تو ہے نہیں، آپ نوجوانوں کے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اب ان آوازوں میں مزید وزن تب بھی پڑتا ہے جب بیرونی سطح پر اس بارے میں بات ہو، سول لبرٹیز کی بات ہو، انٹرنیٹ کی بات